for the cooperation and your kind support in all our endeavors. Parents, this time we have come with a series of webinar. This is going to be an episode of webinars, which is going to be very beneficial for you and our parents, as we suppose that this is a tiring time for all of us, and we all are striving hard and moving ahead with the current situation. We do take a lot of care about the physical, mental, and emotional health of our parents and our students. So I suppose without taking a lot of your time, parents, let's get ourselves introduced to the guest of the day. Varuni Savoy. She has done. Our today's guest is Dr. Varuni Savoy. She has done BAMS and MS in counseling and psychotherapy. She is manager of health education at Address Health. She is having 10 years of experience. I now hand over to Dr. Varuni Savoy for the main session. Uh, Thank you, team. It's wonderful pleasure to be a part of such an innovative thought of addressing the children and the parents regarding the health and its benefits, especially in the time where we are all struggling. Or I should not say it is a struggle, but it is a new normal, which we are all trying to get adjusted to that. So it's a great initiative. I am really thankful for the organization or the institution for giving me such an opportunity. And I, from behalf of Address Health, we are really thankful for the institution to give us an opportunity to talk to you all. Thank you once again for making your time and staying with us. So I think we can directly go into the topic. Can I get a heads up? Yes, ma'am. Yeah, thank you. Yes. So again, I am Dr. Varuni Savoy. I am from Bangalore, and thanks to the digital world, we are all connected. So today I would like to keep the language bit in Hindi and bit in English. Uh, Pardon me, I am not that great in Hindi or Marathi, but I can follow both the language. So today I'll try to do my best for the children. Okay. Yeah. In between any doubts, you can all raise your hand or just type in I. Type in I in the chat box, and that will be, all your questions will be answered. So in between, we will be addressing the children. So all the children, we have a small rules to be followed. Okay, whenever I ask some question, जब भी मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, आपको ये yes के लिए thumbs up raise करना है. Okay, your videos are on, I can see you all. Just do like this. Show me. सभी ने ब्रेकफास्ट खाया? Yes, correct. This is how. कोई बच्चा रो रहा है अभी? अभी कोई बच्चा रो रहा है? This is no. नहीं, we are not crying. Okay, so this is how we are going to talk. Okay, ये yes के लिए है और ये no के लिए है. ठीक है? Yes, very good. So are we all ready to listen to our session now? Are we all ready? Yes, that's great. That's great. Okay. So let me just start sharing my screen. Yeah. So today we are talking about the nutrition and relationship. So now we all live in a family, isn't it? We all live in a family. You're at the home, you're with your parents. What is the main thing? Why do we live with the family? Can anybody just raise your hand and tell me?
what is the main purpose? Like we all have a family, हम सब लोग इकट्ठे रहते हैं, घर में रहते हैं, तो घर से हम क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं? घर में हमें क्या चाहिए? खाना चाहिए। हाँ, हमें खाना, we all stay together to eat together, okay, and also we get the affection and love, isn't it? So we all get the affection and love of the parents, isn't it? So why we are over here? Okay, yeah. So हमको क्या मिलता है? हम पहले बेसिक नीड है, हमारा क्या बेसिक नीड है? हमें जिंदा रहने के लिए बेसिकली क्या चाहिए? खाना चाहिए, isn't it? और हम खुश रहने के लिए हमें क्या चाहिए? अपनों का प्यार चाहिए, अपनों का इज्जत चाहिए, है कि नहीं? हम लोग अभी खुशी खुशी क्यों रहते हैं? क्योंकि पापा और मम्मा हमें बहुत प्यार करते हैं और हमारी हर जरूरत पूरा करते हैं, इसलिए हम बहुत खुश रहते हैं, करेक्ट? एंड इसके बहुत प्यार के साथ वो लोग हमारा खाने पीने का भी ख्याल रखते हैं, isn't it? So we all stay happy and खाना खाने से हमें हेल्थ भी मिल जाता है, isn't it? तो टुडे हम ये दो चीजों के बारे में बात करेंगे। क्या क्या बात करेंगे? कैसा खाना खाना चाहिए, और हम ये भी बात करेंगे जब हम घर में एक दूसरे के साथ रहते हैं तब हमें कैसे रहना चाहिए। ओके, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू थिंग्स। पहला ये है कि व्हाट काइंड ऑफ फूड आर यू सपोज टू ईट। हम खाते तो हर रोज है, लेकिन कैसा खाना खाते हैं वो देखना भी, वो ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा जब हम पापा मम्मी हमें इतना प्यार देते हैं तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं। ओके, ये सब हम आज देखेंगे। तो पहले क्या बात करेंगे, किसके बारे में? हम पहले बात करेंगे खाने के बारे में। तो किसी को पता है न्यूट्रिशन मतलब क्या है? हाँ, रेज हैंड करो, हैंड रेज करो, लेट मी आस्क देम अ क्वेश्चन। किसने हैंड रेज किया है? लेट मी जस्ट सी। ओके, रुद्राज, रुद्राज पवन, बोल सकते हो आप? यस। टीचर म्यूट हुआ है। यस, ऋषिकेश आप बोल सकते हो? क्या है न्यूट्रिशन मतलब? आपने कभी सुना है न्यूट्रिशन के बारे में? हेल्दी फूड। करेक्ट। तो हैविंग हेल्दी फूड, तो फूड में अभी म्यूट कर दो, अभी सारे म्यूट कर दो, ठीक है? वेरी गुड। सो यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस, इजंट इट? सो हेल्दी फूड में क्या रहता है? न्यूट्रिशन रहता है। हेल्दी फूड में न्यूट्रिशन रहता है। न्यूट्रिशन मतलब फूड जब हम खाते हैं तो फूड हमें क्या क्या देता है? हमें नरिश करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। तो जिस खाने से हमें एनर्जी मिलती है उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। और न्यूट्रिशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलोरी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो लाइक अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, आपके घर से स्कूल कितना दूरी पर है, हम क्या बोलते हैं? 1 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर है, ऐसे किलोमीटर में बोलते हैं। आलू या प्याज खरीदना हो तो हम कैसे खरीद पूछते हैं? 1 kg प्याज दे दो, 1 kg आलू दे दो, इजंट इट? तो केजी में मेजर करते हैं। तो हम जब खाना खाते हैं, हमें जब एनर्जी मिलता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलोरीज के साथ कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया? कैलोरीज। सो दीज आर कॉल्ड एज कैलोरीज। क्या बोलते हैं उसको? कैलोरीज बोलते हैं। कैलोरीज इज समथिंग which we measure our energy or the nutrition that we get from the food. Okay, ठीक है? तो हम फूड क्यों, किस बात के लिए खाते हैं? हम क्यों खाना खाते हैं?
पहले बात तो ये है कि खाना खाने से हमें एनर्जी मिलता है. यस, यस और नो? Yes, everyone. I want everyone to just show me a thumbs up. Good. तो और क्या मिलता है? हम खाना खाने से हम क्या कर सकते हैं? ओके, ठीक है. कोई बच्चा बोलना चाहता है? लेट मी टेक आर्या. या आर्या अतुल अंबेकर सॉरी. यस, बोलो. आर्या, अद्वैत, अद्वैत जेडे. Do you want to say? ओके, कोई बात नहीं, मैं बोल दूं. यस, सो हम एक इसलिए खाना खाते हैं कि हमें एनर्जी मिल जाए, हमें. यस, Yes. बोलो किस बात के लिए चाहिए, हम खाना क्यों खाते हैं? ओके, म्यूट कर दो बच्चा, म्यूट कर दो, प्लीज म्यूट कर दो. ठीक है, मैं बता देती हूँ. ओके, यस. तो पहली बात यह है कि हमें एनर्जी मिलने के लिए हमें खाना खाना चाहिए. एनर्जी क्यों चाहिए? आपको खेल कूद करने के लिए एनर्जी चाहिए, पढ़ाई करने के लिए एनर्जी चाहिए, और आपको दूसरा चीज मतलब घर में भी इधर उधर घूमने के लिए, सब काम के लिए हमें एनर्जी चाहिए. Isn't it? तो कहाँ से एनर्जी मिलती है? एनर्जी मिलती है हमें खाने से. Isn't it? तो हमें खाने से एनर्जी मिलती है. और क्या होता है खाना खाने से? खाना खाने से बॉडी भी बिल्ड हो जाती है. बॉडी बिल्डिंग मतलब आप अभी बच्चे जैसे हो. Isn't it? तो थोड़े दिन के बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाओगे. जब आप पैदा हुए थे तब इतने छोटे से थे, है कि नहीं? अभी स्लोली क्या हो रहा है? आपका हाइट भी बढ़ रहा है, आपका वेट भी बढ़ रहा है. Isn't it? तो हमारे बॉडी बिल्डिंग होने के लिए भी हमें खाना चाहिए. और पहली बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमें खाना क्यों चाहिए? हमें खाना इसलिए चाहिए ताकि हम डिसीज के अगेंस्ट फाइट करें. Isn't it? तो वहां पर कोरोना वायरस है, दूसरा बहुत सारे बीमारियां है, नहीं? तो हमें क्यों खाना चाहिए? हम खाने से क्या होता है? We can fight against these diseases. Correct? Correct? यस. सो हम रोज मम्मा आपको क्या देती है? मम्मा आपको देती है जो खाना बहुत अच्छे से पचता हो, और जो खाना आपको क्या क्या देता हो? एनर्जी देता हो, और आपके बॉडी को भी बिल्ड करता हो, और आपको डिसीजेस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए भी आपको शक्ति देता हो. तो ये सब चीजों को मिलाकर मम्मा खाना बनाती है कि नहीं? तो हमें एनर्जी किस किस से मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है बटर से, क्रीम से, ऑयल से, नट से, और बेसिकली ग्रेन्स. जो आप रोज राइस खाते हो, रोटी, गेहूं का रोटी खाते हो कि नहीं? यस और नो? एवरीवन? ओके, आई कैन सी सम चिल्ड्रन आर जस्ट सिटिंग सिंपली. बोलो, आप लोग रोज राइस या रोटी खाते हो? यस. और राइस और रोटी से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, राइट? आप दाल, वरण और ऊसळ सब कुछ खाते हो? यस और नो? यस. वरण भात और दाल बनता है घर में, ऊसळ बनता है. ये सब किससे बनता है? थोड़ा थोड़ा ग्रेन से बनता है कि नहीं? वो सब हमें क्या बोलता है? वो सब हमें बॉडी बिल्डिंग करने के लिए यूज होता है. बॉडी को आपका हाइट बढ़ाने के लिए, आपका वेट बढ़ाने के लिए वो दाल और उशली वो सब उसको हेल्प करता है. उसके साथ साथ क्या हेल्प करता है? आप अगर मांसाहारी है, नॉन वेजिटेरियन है, तो आप मीट भी खा सकते हो, उससे बॉडी बिल्ड हो जाता है. एग का खा सकते हो, चीज खा सकते हो. और हम वेजिटेरियंस का जो करते हैं वो रोज दूध पीते हैं,
है ना। तो इन सब से हमें क्या होता है, हमारा हाइट भी बढ़ती है तो हमारा वेट भी बढ़ती है। तो मम्मा आप रोज खाने में क्या खाते हो, राइस भी खाते हो, दाल भी खाते हो, चपाती भी खाते हो, और ये उशल वगैरह भी खाते हो, तो एनर्जी भी मिल जाएगा आपको, बॉडी बिल्डिंग भी हो जाएगा। उसके साथ सब्जी बनती है घर में, कौन सा भी भाजी सब्जी बनती है, हाँ बनती है। तो वो सब्जी में क्या रहता है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स में क्या रहता है, वेजिटेबल और फ्रूट आपको खाने से क्या होता है, आप डिसीजेस के अगेंस्ट फाइट कर सकते हो, आपको कोई बीमारी नहीं आएगा। इसलिए मम्मा क्या बनाती है घर में, जब भी कोई रोटी के लिए कुछ सब्जी बनाना है तो मम्मा बहुत सारा वेजिटेबल्स डालकर सब्जी बनाते हैं, है कि नहीं, यस और नो, हाँ यस राइट। सो बहुत सारे ये सब मिला के मम्मा बहुत स्मार्ट है, मम्मा इज वेरी स्मार्ट। अगर डैडा भी घर में कुक करते हो तो डैडा को भी पता रहता है कि कैसा खाना बनाना चाहिए, है ना। तो सब लोग क्या करते हैं, एनर्जी गिविंग फूड भी बनाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलता है। उसमें हम दाल उशल वगैरह मिलाकर उसको हम बॉडी को ग्रो करने के लिए भी फूड मिल जाता है, और उसमें जो सब्जियां डलती है उस सबसे क्या होता है, हमें प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। तो ये सब मिलाकर क्या होता है, हेल्दी फूड बनता है, राइट। तो हेल्दी फूड खाने से क्या क्या होता है, एनर्जी मिलती है, हम लोग अच्छे से अलर्ट रह सकते हैं। अलर्ट मतलब कोई कोई क्वेश्चन पूछेगा, कोई बोलेगा वो लेकर आओ बेटा, हम पट से उठकर फट से भागकर जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास एनर्जी रहती है, isn't it? एंड अच्छा खाने खाने से आप बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हो। किस किस को पढ़ाई करना पसंद है, किस किस को पढ़ाई करना पसंद है, यस और नो, हाँ देखो सबको पढ़ाई करना पसंद है। तो आप अच्छे से पढ़ना है तो हमें क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, तो हमें खाने से वो एनर्जी मिलेगा। और सबको खेलना पसंद है, खेलना पसंद है नहीं ना, किसी को भी पसंद नहीं है खेलना, पसंद है राइट। तो हमें प्ले करने के लिए भी, खेलने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और हमें किससे मिलती है, खाने से एनर्जी मिलती है। और आप अच्छा खाने का ये तो आप मोटे नहीं होते हो, अच्छा खाना खाने से मोटापन नहीं आता है, आप लोग हेल्दी रहते हो। और सबसे जरूरी चीज क्या है पता है, जब खाना खाते हैं तब हमें कैसा लगता है, सोचो अब आइसक्रीम खाते हो या आपका फेवरेट पुलाव है या कुछ आपका फेवरेट है, वो सब जब खाते हो कैसा लगता है, मन को एक शांति मिलती है, मन को एक सुकून मिलता है, isn't it? You feel very good about self, you feel very good about your parents, you feel loved when you eat the food, है कि नहीं। तो हमें अच्छा फील करने के लिए भी फूड चाहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अच्छा खाना खाने से हम बीमारी नहीं आता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आप लोग हेल्दी खाना खा रहे हो तो अभी घर में है, घर में किसी टाइम पर भी खा सकते हो, कोई टाइम टेबल नहीं रहता है, आपको जब भूख लगता है आप खा सकते हो। और आजकल जंक फूड भी थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि पापा घर में रहते हैं, मम्मा घर में रहती है, आप रो भी सकते हो, मुझे चिप्स की पैकेट दिलाओ, मुझे आइसक्रीम्स दिलाओ, मुझे चॉकलेट्स दिलाओ, राइट। लेकिन स्कूल में जब रहते थे तो बहुत खेल होता था, यू वुड हैव अ पीटी पीरियड, आपको एक एक्सरसाइजिंग का पीरियड रहता था, आप क्लास में भी बहुत सारे उछल कूद करते थे। घर में उतना होता है, यस और नो, नहीं होता है ना, नहीं होता है, उतना उछल कूद नहीं होता है स्कूल जितना। तो हम क्या हो रहा है, हम बहुत फिजिकल एक्टिविटी कम हो रहा है, हम बहुत कम चल रहे हैं, पर खाने में क्या ले रहे हैं, बहुत सारा अनहेल्दी फूड या जंक फूड खा रहे हैं, इजंट इट। जंक फूड भी ज्यादा खाते हैं। डू यू नो जंक फूड मतलब क्या है,
जंक फूड मतलब क्या है पता है? तो जिस खाने में बहुत सारा शुगर हो, बहुत सारा नमक हो और बहुत ही सारा ऑयल हो, उसको जंक फूड बोलते हैं। अगर आपको पिज्जा खाना है तो पिज्जा आप घर में ये क्या बोलते हैं, चपाती के ऊपर थोड़ा सा चीज डालकर, बहुत सारा वेजिटेबल्स डालकर खाते हो, तो वो अनहेल्दी नहीं है। अगर आप वही पिज्जा बाहर जाकर, इतना मोटा सा जो बेस रहता है और इतना सारा चीज रहता है, तो वो अनहेल्दी रहता है। ठीक है? तो आजकल क्यों ज्यादा बीमारी फैल रही है? क्योंकि लोग बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं और बहुत ही कम हेल्दी फूड खा रहे हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज भी कम कर रहे हैं लोग। इसलिए क्या हो रहा है, उनको बार बार वीकनेस होता है या तो डिसीज होता है ना? समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? ये समझ में आ रहा है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इसको उल्टा करना चाहिए। हमें अगर हेल्दी रहना चाहिए तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और होल ग्रेन्स हमें क्या करना चाहिए? बहुत ज्यादा खाना चाहिए। और ऐसे शुगरी, फैट, सॉल्टी, ऐसा का हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा जंक फूड को हमें कम करना चाहिए, तब हम बहुत हेल्दी रह सकते हैं। तो आज से आप क्या कर सकते हो? हमने तो समझ में आ गया कि हमको एनर्जी गिविंग फूड खाना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग फूड खाना चाहिए, और हमें ऐसे सब्जियां खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, जिससे हम डिसीजेस से फाइट करते हैं। ये सब खाना खाना चाहिए। लेकिन कितनों को बताओ मुझे कि कितने लोगों को घर का खाना पसंद है? रेस करो, हैंड्स रेस करो कि किस किस को घर का खाना अच्छा लगता है खाने में। सारे बच्चे हाथ उठा रहे हैं। अरे बाप रे! हाँ, रिधिमा को नहीं अच्छा लगता है ना? और कौन कौन है? हाँ, थोड़े बच्चे हैं जिसने हाथ उठाया नहीं है। नहीं, खाना अच्छा नहीं लगता है ना घर का खाना? जंक फूड ही अच्छा लगता है? नहीं, थोड़े लोग हाँ मिक्स्ड है। थोड़े बच्चे कहते हैं घर के खाना हमें पसंद है, थोड़े बच्चे नहीं नहीं मुझे हमें पसंद नहीं है ना? तो ठीक है, वेरी गुड चिल्ड्रन, वेरी गुड। तो ऐसा हमें आंसर करने से मुझे अच्छा लगता है। ओके, तो यस, तो आज से हम क्या करेंगे? हाँ, मैं भी जब छोटी थी ना, तब मुझे भी घर का खाना उतना पसंद नहीं आता था। तो मुझे लगता था घर का खाना बहुत बोरिंग है ना? मम्मी कौन सा तो सब्जी डाल देती है उसमें और पसंद ही नहीं आता था, राइट? तो ऐसे ही चलता गया चलता गया चलता गया। जब मैं मेडिकल कॉलेज के लिए गई, जब मैं डॉक्टरी पढ़ने के लिए गई, तब मैं हॉस्टल में थी। तब तो वहां पर खाना खाने से हॉस्टल का खाना ना और भी बकवास था, और भी ज्यादा बकवास था। तब मुझे समझ में आया। और हॉस्टल का खाना खाने से 1 साल बीत गया, तो मैं बहुत वीक हो गई। तो पढ़ाई में मन नहीं लगता था, खेल कूद में मन नहीं लगता था, सब जगह स्लीपी स्लीपी लगता था, सो जाती थी बहुत ज्यादा, और बहुत डल हो गई। तो सोचा, और मेरे डॉक्टर की जो गुरु रहती है ना, टीचर, डॉक्टर के लिए टीचर्स रहते हैं, टीचर के पास गई और पूछा, मैम ऐसा हो रहा है मुझे, मैं क्या करूं? मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, मैं खेल कूद में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूं मैं? मैंने पूछा। तो तब मेरे टीचर ने बताया कि वारुणी, आप खा नहीं रहे हो अच्छे से, आपका बहुत सारा जंक फूड बढ़ गया है, इसलिए आपको बॉडी के लिए, आपके बॉडी के लिए अच्छा खाना नहीं मिलने से आप लोग ऐसे फील कर रहे हो। तो आज से क्या करो तुम, अच्छा खाना थोड़ा खाना स्टार्ट करो करके। तो तब मुझे समझ में आया। तो स्लोली, एक ही दिन में अच्छा लगता है क्या खाना? एक ही दिन में खाना अच्छा लगता है?
अच्छा नहीं लगता, तो हमें स्लोली प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, स्लोली स्लोली स्लोली, थोड़ा थोड़ा, जब हम स्कूल से आते थे, कॉलेज से आते थे, तो थोड़ा थोड़ा सब्जी, थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स खरीद के लेकर आती थी। तो जब हॉस्टल में आती थी, खाने के साथ साथ मैं बहुत सारा वेजिटेबल्स लाइक कुकुम्बर और कैरेट है, टोमेटोस है, और ये बीन्स है, रॉ बीन्स है, वो सब खाना शुरू किया और सारे फ्रूट्स खाना शुरू किए। तो थोड़ा एक 15 दिन में थोड़ा 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 आराम लगने लगा। तो स्लोली मुझे क्या हुआ, आई स्टार्टेड फीलिंग गुड अबाउट द फूड। मुझे खाना अच्छा लगने लगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं सब्जी खाती थी, फ्रूट्स खाती थी, तो थोड़ा थोड़ा खाना पसंद आने लगा। तो लेकिन दिमाग में ये भी था कि मुझे बहुत सारा नहीं खाना चाहिए, जितना है उतना ही खाना चाहिए। और एक और बात मैंने क्या शुरू किया पता है, मैं कभी खाना स्किप नहीं करती थी। तो हमें 3 बार खाना खाना चाहिए, है कि नहीं? ब्रेकफास्ट खाना है, लंच दोपहर में खाना खाना है, और रात में भी खाना अच्छे से खाना चाहिए। तो मैंने पहले पहले हॉस्टल में रहती थी, पसंद नहीं आता था, तो मैं ब्रेकफास्ट ही नहीं करती थी, कभी कभी रात का खाना ही नहीं करती थी। तो जब मेरे टीचर ने बताया वो बहुत गलत बात है, तो मैंने ध्यान में रखा, और 15 दिन मैंने क्या किया, कभी भी ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर मैंने कभी मिस नहीं किया। ओके। उसके साथ साथ मैंने क्या शुरू किया, बहुत सारा पानी पीना, छाछ पीना। लस्सी पसंद है आप लोगों को? लस्सी पसंद है? हाँ, लस्सी और फ्रूट जूस, ये सब बहुत सारा पीना शुरू कर दिया। क्योंकि मैंने क्या बोला, आपको फ्रूट्स खाने से क्या मिलता है, आप लोग डिसीज के अगेंस्ट फाइट कर सकते हो, है कि नहीं? सो इसलिए मैंने ज्यादा पानी, ज्यादा लस्सी और ज्यादा फ्रूट जूस लेना शुरू कर दिया। और जब फ्रेंड्स होते थे ना, फ्रेंड्स चॉकलेट्स लाते थे, चिप्स लाते थे, और बोलते थे अयो तुम ये सब नहीं खाते हो, कितना बोरिंग हो आप। तो मुझे चिढ़ाते थे। जब मैंने ये सब जंक फूड खाना बंद किया, तो सारे बच्चे मुझे चिढ़ाने लगे, एक ऐसी बच्ची है, ये खाती नहीं है, पिज्जा खाती नहीं है, बर्गर खाती नहीं है, करके बहुत सारे लोग चिढ़ाने लगे। तो मुझे क्या रोना था? शुड आई क्राई? नहीं, रोना नहीं था, क्योंकि मेरे टीचर ने कहा था कि मुझे ये सब बच्चे करते हैं, लेकिन तुम बुरा मत मानो। ठीक है, बुरा नहीं मानना है, क्योंकि जब आप हेल्दी फूड खाते हो, तब आप ही हेल्दी होते हो, दूसरे बच्चों के सामने आप ही हेल्दी होते हो, आप पढ़ाई अच्छा कर सकते हो, खेल कूद अच्छा कर सकते हो, है कि नहीं? तो कभी बच्चे चिढ़ाए तो आप बुरा मत मानना। तो मैंने वो बात अपनाई, और मैंने बुरा मानना बंद कर दिया। और जो भी बच्चे बोले, जो भी वो चिप्स दे दे, चॉकलेट्स दे दे, पिज्जा बर्गर दे दे, मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है, मुझे अच्छा खाना ही खाना है। क्योंकि मुझे तो फेल नहीं होना था, मुझे तो डॉक्टर बनना था, तो मुझे फेल नहीं होना था। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं खाती नहीं हूं करके। तो एक और बात मैंने क्या किया, एक्सरसाइज चालू कर दिया। तो मैं थोड़ा बहुत खेल कूदना शुरू कर दिया। मैं घर में, हॉस्टल में सब बच्चों को हेल्प करने लग गई, बहुत सारा घूमने लग गई, एक्सरसाइज करने लग गई। तो ये सब थोड़ा 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 करने से स्लोली 15-20 डेज और 1 महीने में मैं बहुत हेल्दी फील करने लगी, और मैं एग्जाम में भी फर्स्ट आने लगी, और स्कूल स्पोर्ट्स में भी फर्स्ट आने लगी। तो सारे टीचर्स ने मुझे आकर बोला, वाह वारुणी, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, ऐसे कैसे किया आपने? बहुत सब लोग मुझे ऐसे पैट किए, वेरी गुड वारुणी। तब कैसे लगा मुझे? ओह, आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी, इजंट इट? आपको भी ऐसे हैप्पी रहना है? आपको भी चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपको थपथपाए और बोले कि यू आर डूइंग वेरी गुड? आपको चाहिए? चाहिए, आपको चाहिए? हाँ, सबको पसंद है ना? सबको चाहिए हेल्दी रहना, इजंट इट?
हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए आज से? आज से हमें क्या करना चाहिए? कौन बोल सकता है हमें आज से क्या करना चाहिए? कोई बोल सकता है क्या क्या करना चाहिए आज से हमें? ओके, श्रेया टेल मी। श्रेया टेल मी, आज से हम क्या करना चाहिए? वो 23 बच्चों ने हैंड्स रेज किया है। ओके, हेल्दी फूड खाना चाहिए। फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड हेल्दी खाना फूड चाहिए। खाना चाहिए। दूध खाना चाहिए। खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। और जंक फूड तो आपको समझ में आ गया है ना? तो हमें अच्छा खाना खाना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक था? खाना तो हम अच्छा खाते हैं, लेकिन खुश कैसे रहना है अपनों के साथ? राइट? अपनों के साथ खुश कैसे रहना चाहिए वो हम थोड़ा देखेंगे। तो आप लोग अभी घर में हो, घर में आपके पेरेंट्स के साथ हो, कभी कभी मम्मी बोलती है वो कितना तंग करता है मेरे बच्चा, कहते हैं कभी कभी मम्मी या पापा कहते हैं तंग मत करो मुझे, कहते हैं? हाँ कहते हैं, है ना? कहते हैं नहीं कहते हैं? कहते हैं। कभी कभी आप जब खेल कूद करते हो, जब आपके पापा मम्मी जो बोलते हैं आप नहीं सुनते हो, तो पापा मम्मा को परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि कितना परेशान करते हैं मेरे बच्चे, है ना? बोलते हैं कितना परेशान करता है। तो हम आज सीखेंगे कि हमें घर में तो 1 और महीना या 2 महीना तो रहना ही पड़ेगा घर में मम्मा पापा के साथ। स्कूल थोड़ा कम हो जाएगा, है ना? तो हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करना है, अगर आप स्कूल भी जाते हो तो भी ये सब रूल्स हमें फॉलो करना चाहिए। ओके, तो अब जहां पर भी हो ये रूल्स आप फॉलो करते हो तो बहुत अच्छे बच्चे बन जाते हो। ठीक है? किस किस को अभी अच्छे बच्चे बनना है? अच्छे बच्चे किस किस को बनना है? यस, अच्छे बच्चों सबको बनना है। देखो सबको बनना है, सब हैंड रेस कर रहे हैं, है ना? सबको अच्छा बच्चे बनना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? तो हमें पहली बात ये है कि हमें जो अपने पास है वो शेयरिंग करना चाहिए। राइट? हमें शेयरिंग करना चाहिए। तो आपके भैया है, बहना है, कोई भी घर में हो, इवन आपके पापा और मम्मी के साथ जो भी खाना है, जो भी है, आप जब शेयरिंग करते हो तो शेयरिंग इज केयरिंग, इजंट इट? तो शेयरिंग करने से हम अपने में बहुत सारा प्यार बढ़ता है। ओके, तो पहली बात यह है कि हम लोग शेयर करना सीखना चाहिए। सो दूसरी बात यह है कि सब लोगों को हमें मदद करना चाहिए। जब मम्मा खाना पकाती है, जब पापा बाहर से आते हैं या सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, अगर उन्होंने आपसे हेल्प मांगा कि बेटा वो सब्जी ला दो, फ्रिज से वो ला दो, या दूध लेकर आ जाओ, या बेटा वो उसको पापा को एक टी लेकर देकर आ जाओ, मम्मी को एक कट करके दे दो। कट मतलब वो वैसा कट नहीं, नाइफ वगैरह आप नहीं होल्ड कर सकते हो, अब आप बच्चे हो, ऐसे ही थोड़ा तोड़ के देना हो, बीन्स वगैरह जो हाथ से तोड़ सकते हो। वैसे अगर पूछे तो हमें क्या करना चाहिए? हेल्प करना चाहिए। सो कौन 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 हेल्प करते हैं?
पापा और मम्मी को, भाई को, बहन को कौन कौन हेल्प करते हैं? लेट मी सी हु विल हेल्प। ओ बहुत सारे बच्चे हेल्प करते हैं, देखो। Very good, very good. You need to hold your hand in front of camera, children. Otherwise, I cannot see your hand. Ah, very good. देखो सारे बच्चे हेल्प करते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, ये थर्ड चीज तो वेरी इंपॉर्टेंट है. क्या है? जब पापा मम्मी कुछ बोलते हैं आपको, जब बड़े, कोई भी बड़े, टीचर हो, दादा दादी हो, कोई भी बड़े आपसे कुछ कह रहे हो, तो आपको पहले सुनना चाहिए. पहले क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए. वो क्या कह रहे हैं सुनकर समझना चाहिए. ठीक है, तो सुनो पहले वो क्या कर रहे हैं. तो जो बोलते हैं वो फॉलो करने की कोशिश करो. ठीक है, पापा मम्मी चाहते हैं कि आप एक जगह ही बैठो? नहीं, वो भी चाहते हैं कि आप खेल कूद करो, आप एक्टिव रहो, आप बहुत सारा मस्ती करो. पापा मम्मी भी चाहते हैं आपको मस्ती करना, लेकिन वो डरते हैं कि कहीं मस्ती करने में आप अपने आप को कोई चोट ना पहुंचा दे. Isn't it? तो उनके बात थोड़ा सुनो और वो जो कहते हैं फॉलो करने की कोशिश तो करो. राइट? तो तब आपके मम्मा पापी को भी बहुत खुश हो जाएगा और प्राउड फील करेंगे. देखो मेरा बच्चा सारे बात सुनता है और मेरा बच्चा सब कुछ फॉलो करता है. Isn't it? और जब किसी से बात करते हो तब उनके आंखों में आंखें डालकर बात करो, उनका फेस देखकर बात करो. ओके, तो जब से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं कभी भी आपको बात कर रही हूँ, आपको देख रही हूँ, मैं ऐसे नीचे ऐसे बैठकर बात कर रही हूँ क्या? ऐसे बात करने से आपको समझ में आता है? नहीं आता है. तो जब पापा मम्मी से बात करते हो या किसी बड़े से या कोई गेस्ट से बात करते हो, उनके फेस देखकर बात करो. ओके, और थोड़ा मैन अब मुझे तो पता है आप सब लोग अच्छे बच्चे हो, आपको सब मैनर्स पता है. कोई घर में आएगा तो आपको वेलकम बोलना चाहिए, पानी देना चाहिए, उनको बैठने के लिए जगह देना चाहिए. Isn't it? तो उनको ग्रीटिंग्स करना चाहिए, हेलो अंकल, नमस्ते अंकल आंटी. राइट? सो ये सब करने से क्या होगा? हमारा प्यार बढ़ता है, हम बहुत अच्छे से रह सकते हैं. जब वो प्यार और अफेक्शन बढ़ता है तो हम बहुत खूब मस्ती में रह सकते हैं. Isn't it? तो हमें क्या करना चाहिए? शेयरिंग करना चाहिए. जब पापा मम्मी कुछ बोलते हैं तो उनको सुनना चाहिए और उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए. जब भी बड़ों को या छोटों को हमारी मदद की जरूरत है तो उनको हम मदद करना चाहिए. जब भी हम बात करते हैं तो फेस देकर करते हैं. और जब भी हम कोई बड़ों से मिलते हैं या हम किसी के घर जाते हैं, कोई हमारा घर आता है, तो हमें अच्छे बिहेवियर करना चाहिए. Isn't it? तो the last one what I want to say is respect the personal space. ये क्या है पर्सनल स्पेस? पर्सनल स्पेस मतलब क्या है? किसी को पता है? नहीं. ओके, तो हमारे घर में कंपाउंड है, आपके घर में कंपाउंड है? यस और नो? नो, कंपाउंड नहीं है. कंपाउंड रहता है ऐसे घर में? कंपाउंड नहीं है घर में, लेकिन आपने देखा है बहुत लोगों के घर के लिए एक कंपाउंड रहता है. देखा है आप लोगों ने? हाँ, देखा है ना? देखा है. खेत में ऐसे मार्क करते हैं, देखा है? खेत में ऐसे बीच में मार्क रहता है. क्या है वो मार्क? किस लिए रहता है वो मार्क? किस लिए रहता है वो मार्क? कोई बोल सकता है? कोई बच्चा बोल सकता है मुझे? प्रद्युम्न यादव या श्रेया साहनी, कोई बोल सकता है क्यों ऐसे बाउंड्रीज रहता है? वो टीचर देखभाल करने के लिए.
वहाँ से चल के जाने के लिए वहाँ से चल के जाने के लिए मेरे फ्रेंड्स मेरे घर में बहुत शैतानी करते हैं। One minute, stop it. या करेक्ट। तो बहुत सही बोला आप लोगों ने, करेक्ट ना। तो क्यों हमें ये बाउंड्रीज रहती है, जस्ट अ मिनट, या क्यों हमें ये बाउंड्रीज रहती है, मिलती है। तो कंपाउंड है या फार्म लैंड में भी ऐसे बाउंड्रीज रहता है। तो आप इंडिया में भी एक बाउंड्री है ना। तो इसलिए ये है कि हम ये बाउंड्री को क्या कहते हैं, अपना कहते हैं। हम पाकिस्तान नहीं जाते या चाइना नहीं जाते, नेपाल नहीं जाते, तो इस सबको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अपना देश या अपना बाउंड्री। यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये मेरा इंडिया है। ऐसा ही हमारा अपना एक स्पेस रहता है, एक अपना ही खुद का एक डिस्टेंस रहता है। तो इस डिस्टेंस में किसी को आने की परमिशन नहीं है। तो जब अपना होता है तो आप होते हो, आपके थोड़ा सा पास में कौन रहता है, फैमिली रहता है। तो उसके बाद क्या होता है, हमारा फ्रेंड्स के सर्कल, टीचर्स के सर्कल, फैमिली फ्रेंड्स के सर्कल होता है। उसके बाद क्या आता है, स्ट्रेंजर्स, नेबर्स, ये सब होते हैं, इजंट इट। तो क्या है, आप मतलब आपके शरीर, आपके बॉडी, तो इस बॉडी को वो बहुत पर्सनल है, वो कोई भी हमें टच नहीं करना चाहिए। ये सब हमारी बॉडी है, ठीक है। तो हमारे स्पेस में, मतलब ये मेरा बाउंड्री है, ओके। इस बाउंड्री में किसी को एंटर करने की इजाजत नहीं है। नोबडी कैन एंटर योर बॉडी, ओके। तो ये अपना बॉडी है, अपना बाउंड्री है। तो उसके बाद क्या होता है, आप लोग आपके फैमिली के साथ या बहुत नियरेस्ट फैमिली, दैट इज योर मदर, फादर या बहन, भाई, इनके साथ बहुत क्लोजली रह सकते हो। लाइक यू कैन हग देम, यू कैन सिट बिसाइड देम, यू कैन हैव फन विद देम। तो ये सब क्या है कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो इनके साथ, क्यों, कौन डिसाइड करता है आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, इन सबके हमारे फैमिली के साथ उठना बैठना मस्ती करना, आप डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो आपका सेकंड सर्कल होता है आपका फैमिली। उसके बाद आता है आपका टीचर्स, आपका फ्रेंड्स और आपके फैमिली पर्सन, ओके। उसके बाद होता है जो लोग आपको फैमिली फ्रेंड्स हो या किसी को आप जानते हो। उसके बाद आता है स्ट्रेंजर्स, ओके। तो whenever you talk with somebody, what you have to do, you have to maintain a safe distance. ऐसे नहीं है कि सबके मुंह के पास जाकर हम बात करें या मुंह के पास जाकर सबको हक करते फिरे या सबको किस दे दे, isn't it? नहीं, हमें अपने आप का एक बाउंड्री रहता है, हमें अपने आप के लिए एक रक्षा कवच रहता है, ओके। तो ये रक्षा कवच हमको ये प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमारे बाउंड्रीज को, हम हमारे शरीर को हम सेफ रखना चाहिए। कोई आपके पास आएगा तो आपके परमिशन से आएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके बात करना चाहिए सबसे, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा डिस्टेंस रहा तो इट इज ओके, इट्स गुड। बट कोई अगर आपके बहुत पास आ रहा है तो वो सही नहीं है, ओके। समझ में आया। तो सब हमेशा ये याद रखो कि पहले आपका बॉडी है, आप हो, आपके बाद आता है आपका फैमिली, उसके बाद आता है आपका फ्रेंड्स, ओके। लेकिन पुलिस है, फायर फाइटर्स है, डॉक्टर्स है, डेंटिस्ट है, वो लोग आपको टच कर सकते हैं। जब आपके फैमिली मेंबर आपके साथ हो तब वो टच कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका हेल्प कर रहे हैं, isn't it?
तो ऐसा हम जब ऐसा मेंटेन करते हैं या इस बारे में हम ख्याल में रखते हैं, सोच में रखते हैं, तो आप लोग हमेशा हैप्पी रह सकते हो। ओके, तो हमने आज क्या सीखा? हमने ये सीखा कि खाना अच्छा सा खाना चाहिए, जो घर में बनता है वो खाना खाना चाहिए, क्योंकि आपके मम्मा पापा को पता है कि आप कौन सा खाना खाने से आप हेल्दी रह सकते हो, isn't it? तो सेकेंड थिंग व्हाट वी नीड टू लर्न, तो हम घर में लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। हम शेयरिंग करो और उनको बड़ों को हेल्प करो। जब कोई घर को आता है या आप किसी के घर में जाते हैं, अच्छा बिहेवियर करो और हमेशा खुशी खुशी रहो। ये सब करने से आप हमेशा खुश रह सकते हैं। और खुश रहने के लिए एक और जरूरी बात क्या सीखा हमने? हमारा एक पर्सनल बाउंड्री होता है, हमारा एक पर्सनल स्पेस होता है। उस स्पेस में हम किसी को एंटर करने के लिए नहीं देंगे। ओके, जैसे हम चाइनीज को या पाकिस्तानी को इंडिया में एंटर करने के लिए, सोल्जर्स को इंडिया में एंटर करने के लिए देते हैं, अलाउ करते हैं? नहीं करते हैं, है ना? तो नहीं करते, इसलिए हमारे पास बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो हमारा वो बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं, है कि नहीं? ऐसे ही हम अपने ही खुद की सोल्जर्स है, हमको अपना बाउंड्रीज खुद प्रोटेक्ट करना है। तो किसी को हमारे स्पेस में एंटर करने के लिए इजाजत नहीं देनी चाहिए। जब हम ऐसे करते हैं, अच्छे बिहेवियर्स करते हैं और अपना खुद का एक मेंटेन करते हैं, तब आप बहुत खुशी खुशी से रह सकते हैं। समझ में आया? सबको समझ में आया ये बात? ठीक है, तो थैंक यू चिल्ड्रन, दिस इज व्हाट वी वांटेड टू लर्न एंड शेयर विथ यू टुडे। क्योंकि आप लोग अभी सब घर में हो और थोड़े दिन के बाद स्कूल्स भी शुरू हो जाता है। जब स्कूल शुरू हो जाता है तब ऐसे जरूरी है कि वी शुड यू नो जस्ट अ मिनट, या जब हम स्कूल्स में जाते हैं या जब आप घर में हो, कहीं पर भी हो, ये सब बातें बहुत जरूरी है। फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए नहीं, लेकिन आप जिंदगी भर इसको याद रखना चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? यस, गिव मी अ बिग थम्स अप एवरीवन। अच्छा लगा आज का सेशन? कुछ नया सीखा आज? यस यस, आई कैन सी एवरीवन। Give me a thumbs up. Let me see if you learn something new. Yes, give me a big smile there. Big smile and a thumbs up. Yes, very good. Very good. कुछ लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया है, इसलिए आई कैन नॉट सी यू ऑल, बट होप यू ऑल एंजॉय द सेशन, इजंट इट? सो अभी कोई क्वेश्चंस है आपके मन में? कोई डाउट्स है? पेरेंट्स के लिए कुछ डाउट्स है? कुछ है? बच्चे तो आराम से बोल रहे हैं नहीं। वेरी गुड चिल्ड्रन, वेरी गुड। कोई डाउट्स है? यस टीचर, इज देयर एनी chat message, any doubts or any discussion? Okay, there are so many children raising their hand. Okay, सुजय केदार, कोई डाउट है? नहीं है। ओके, अंतरा जोशी, कोई डाउट है? Please remove the hand raise icon if you don't have any doubts. Lower the hand if you don't have any doubt. Swara या श्रेयस, वृति Bhutak, second B. If you have any doubts, if you don't have doubts, please lower your hand. Sorry to interrupt you, doctor. Yes. Session was very nice, so I guess parents are not having any questions. Okay, sure, ma'am. I think we are exactly on time. So I think we have 5 more minutes time, isn't it?
Yes. Yeah. So meanwhile, I want to ask few children, what did you learn from this class? Can anybody answer me? Just raise your hand. Who can tell me? What did you understand? Okay, Swananda. Swananda teacher. To eat healthy food, exercise. हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए. We should healthy food खाना चाहिए. हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए. खाना चाहिए. हेल्दी फूड खाना चाहिए. हेल्थ केयर करना चाहिए. और हम हेल्थ फूड करना चाहिए हमारे हेल्थ के लिए. आप सब लोग एक साथ बात करेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा. ओके ओके, लेट्स डू लाइक दिस. वी विल डू अ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आंसर. ओके, ट्रू मतलब ऐसे थम्स अप करो, फॉल्स मतलब ऐसे करो. ठीक है. ओके, हमें रोज रोज जंक फूड खाना चाहिए? यस और नो? रोज जंक फूड खाना चाहिए हमें? नो. हमें वेरी गुड करेक्ट आंसर. हमें ब्रेकफास्ट लंच या डिनर में कोई 2 टाइम खाना तो बस है. ब्रेकफास्ट या लंच में किसी एक को या 2 खाने को खाना बस है. करेक्ट है? नो. शुड वी ईट ऑल द 3 मील्स ऑफ द डे? 3 टाइम्स भी अच्छे से खाना खाना चाहिए? यस, परफेक्ट. ओके, तो हमें एक साथ ही बहुत सारा खाना खाना चाहिए. एक बार में ही बहुत खाना खाना चाहिए. नो, दैट्स करेक्ट. नो, हमें एक बार में बहुत सारा नहीं खाना चाहिए. हेल्दी खाना खाना चाहिए, लेकिन करेक्ट क्वांटिटी में खाना चाहिए. करेक्ट. तो हमें खाना खाने से एनर्जी मिलती है और बॉडी भी ग्रो होता है. करेक्ट. करेक्ट. तो हमें खाना खाने से डिसीज के साथ फाइट करने के लिए शक्ति नहीं मिलती है. रॉन्ग. करेक्ट. वेरी गुड. सो वी कैन फाइट अगेंस्ट द डिसीज खाना खाने से. तो हमें राइस और दाल खाने की जरूरत नहीं है रोज, या चपाती सब्जी खाने की जरूरत नहीं है रोज. हाँ, जरूरत है. तो हम फ्रूट्स एक वीक में एक फ्रूट खाए तो बस है. नो, दैट्स रॉन्ग. नो, हमें रोज रोज 1 या 2 फ्रूट खाना है. रोज 1 या 2 फ्रूट खाना है. ठीक है. तो हम जब घर में कोई आता है तो दे कैन कम एंड हग अस, दे कैन आस्क अस टू सिट ऑन देयर लैप, दे कैन किस अस. करते हैं? छोड़ना चाहिए? कोई आए तो हमें हक करने के लिए छोड़ना चाहिए? नहीं. अगर वो कोई आपके बहुत स्पेशल, बहुत अच्छे फैमिली मेंबर हो, आप कंफर्टेबल हो तो ही अलाउ करें. किसी के गोदी में जाकर बैठना है आपको, जो दे आर वेरी स्ट्रेंजर, आपको उनके गोदी में जाकर बैठना चाहिए? नो. जब मम्मा, आप खेल रहे हो, ठीक है, आप खेल रहे हो फ्रेंड्स के साथ और मम्मा बुलाती है, आजा बच्चों मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए, तो हमें बोलना चाहिए नहीं मम्मा मैं खेल रही हूँ, मैं आती नहीं हूँ या आता नहीं हूँ, ऐसा बोलना चाहिए? नहीं, हमें हेल्प करना चाहिए. तो आप है और आपके फ्रेंड्स है, खेल रहे हो, आपके पास एक आपका बहुत फेवरेट का टॉय है, फ्रेंड मांगता है मुझे दे दो आपके टॉय, मैं देकर देता हूं, तो कभी भी नहीं देना है. कभी भी आपका टॉयज उनको नहीं देना है. wrong. We need to share with them. That's correct. We need to share with them, isn't it? तो डॉक्टर्स या डेंटिस्ट या पुलिस
डॉक्टर्स आपको टच कर सकते हैं? डॉक्टर्स आके आपको टच कर सकते हैं? हाँ, जब वो आपको बीमारी है तो डॉक्टर आपको टच कर सकते हैं, लेकिन आपके फैमिली मेंबर साथ में होना चाहिए। ठीक है, तो आपको अपना बॉडी को खुद प्रोटेक्ट करना है या पुलिस की मदद लेना है? पुलिस की मदद लेना है? नहीं, वी आर स्ट्रांग। अब सब लोग बहुत स्ट्रांग हो, इसलिए आपके बॉडी का प्रोटेक्शन आप ही को करना है। Isn't it? करेक्ट। और आप जब घर में हैं तब रोंदू के जैसे रहते हो, रहना अच्छा है? रोते रोते रहना, पापा मम्मी के साथ फाइट करना अच्छा है? नहीं, पापा मम्मी जब कुछ बोलते हैं तब सुनना जरूरी है? सुनना जरूरी है? हाँ, सुनना है। पापा मम्मी जो बोलते हैं उसको हमें सुनना है। वेरी गुड। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ। Clap for yourself, everyone. Yes, very good. We learned something new today, isn't it? And you're all going to follow this. Yes? Are we all going to eat well from today onwards? Eat healthy foods? Are we going to take care of our family and ourselves? Yes? Yes, big smile and yes, everyone. Yes. Very good. Then pat your back. Yes, today I can see all 200 children very well behaved, very good. And from today onwards, all these blossom kids will be blossoming like anything. Right? Very good, children. Thank you. It was very nice talking to you all. You were very active throughout the session, and I enjoyed talking to you. Okay? Thank you all. Now go back, take a round of walk, drink something, and feel healthy. Okay? Yes. Yes. Thank you, teachers, for giving me such a wonderful opportunity. I totally enjoyed interacting with the children, and they were all very active children, actively participating. So thank you very much. Yes, it was our privilege to be acquainted with an eminent doctor like Varuni Savoy. And we thank you for being with us today and giving us important information which we all can follow in our daily life. On behalf of JSPM and Blossom Public School and Junior College New, we thank you for taking time out from your busy schedule and guiding us. Thank you very much. Have a good day, parents. Thank you very much.